Assalamu alaikum students. Today we are going to start MCQs of the Red-Headed Men's Club. As you have read the story and you can answer its MCQs yourself. I hope all of you can answer yourself. Now come up to page 103 of your English literature worksheet, page number 103. Choose the best answer for each of the following. The man took out a newspaper from the inside pocket of his dash. G. The correct option is coat. From the inside pocket of his coat. All of you have read the story. You must know कि उसने Mr. Wilson when came to Sherlock Holmes तो उसने कहाँ से न्यूज़पेपर निकाला था? From the inside pocket of his coat. कोट की अंदर वाली पॉकेट से. The man who becomes a member of the club will get dash pounds a week for very easy work. G. जो भी उस क्लब का मेंबर बनना चाहता है he will get how many pounds per week? 4 pounds per week. That was a huge amount at that time. आज भी आपको पता है पाउंड सबसे महंगी करेंसी है और उन टाइम्स में भी महंगी करेंसी थी और उस अमाउंट भी काफी थी. Now number 3 is all red-headed men who are strong and healthy and above the age of dash can try. G. Above the age of 21. All red-headed men who are strong and healthy and above the age of 21 years can try. उसकी conditions क्या थी? Red-headed club का member बनने के लिए they must have bright red hair, they must be strong and healthy and above the age of 21 years. ये सारी conditions उन्होंने मिस्टर विल्सन को देखकर ही रखी थी. Mr. Wilson used to buy and sell old dash in his shop in Coburg Square. Mr. Wilson किस चीज का बिजनेस करते थे? Buy and sell. He used to buy and sell old clocks in his shop. उनकी शॉप में वो ओल्ड क्लॉक्स का बिजनेस करते थे और इससे जाहिर है ये इसमें कोई इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है तो उनको कोई ज्यादा मार्जिन नहीं था, ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी. The man who told Wilson about the job and showed the newspaper was dash. G. Who told Wilson about the job? Spalding, his servant, told about the job and showed the newspaper. Spalding. You have to encircle the correct options, you know. Now number 6 is Spalding told Wilson that the club pays its members dash a year just to go to the club for a few hours. और Spalding ने ही Wilson को सारी information दी थी उस क्लब के बारे में और उसने बताया था कि क्लब अपने मेंबर्स को कितनी अमाउंट पे करता है सिर्फ चंद घंटे क्लब में जाने की और बहुत इजी सा काम करने पर उनको साल के 2000 पाउंड्स पे करता है. Hopkins wanted all his club members to be Londoners and with really dash hair. G. Which type of hair? Bright red hair. Yes, bright red hair. Mr. Hopkins, जैसा कि उन्होंने बताया था कि मिस्टर हॉपकिंस चाहते थे कि इस क्लब के तमाम मेंबर्स लंडनर्स हों, मतलब लंदन नेशनैलिटी होल्डर्स हो और उन सबके ब्राइट रेड हेयर हो. Now number 8, Mr. Wilson was assigned the work to copy out the words from
मिस्टर विल्सन को क्या काम दिया गया था? टू कॉपी आउट द वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी। कहाँ से उन्होंने वर्ड्स कॉपी करने थे? डिक्शनरी से। और ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था, वेरी इजी, कोई छोटा बच्चा भी ये टास्क कर सकता है, ये काम इजीली कर सकता है। नंबर 9, विल्सन वर्क देयर and copied the words from A to G। विल्सन ने वहां कितने अरसे तक काम किया था? Work there, विल्सन वर्क देयर फॉर 8 years। 8 years तक मिस्टर विल्सन ने वहां पे काम किया और उसके साथ और उस दौरान हमने A to G, ये 7 अल्फाबेट्स बनते हैं। A to G उन्होंने तमाम लेटर, A से G तक तमाम लेटर कॉपी कर लिए थे, तमाम वर्ड कॉपी कर लिए थे इन लेटर से। और फिर अचानक ऑफिस बंद हो गया, क्लब ऑफिस was closed। Now number 10, Spalding had brown marks on his face, dash the right eye and a hole in his ear। Spalding के क्या था? He had a brown mark on his face, उसके फेस पे ब्राउन मार्क था, ब्राउन निशान था। above the right eye, उसकी राइट आई के ऊपर, and a hole in his ear। Now number 11, Mr. Wilson's home was at the dash of the row of the 5 houses। जी, Mr. Wilson's home was at the end of the row of 5 houses। जी बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम है? टीचर, जी बेटा, टीचर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हम आ रही है। चले मैं यस टीचर। बोलती हूँ, फिर देखती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा, अगर फिर प्रॉब्लम हुई तो फिर बताइएगा, थोड़ा मैं ऊंची बोल लेती। ओके जी, मिस्टर विल्सन्स होम वॉज, नंबर 11 इज मिस्टर विल्सन्स होम वॉज एट द एंड ऑफ द रो ऑफ 5 हाउसेस। मिस्टर विल्सन का घर 5 घरों की रो में सबसे एंड पर था। Number 12, Mr. Wilson's home was located at the right behind the suburban bank। किसके पीछे था मिस्टर विल्सन का घर? राइट एट द बैक ऑफ, रेस्टोरेंट नहीं था, मैकफरलैंड्स नहीं था, बल्कि इट वाज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ suburban bank। Now next is Dash was a robber, murderer and a dangerous criminal of London। जी, कौन था? Yes, it was John Clay। John Clay was the robber, a murderer and a dangerous criminal of London। जी, next देखिए, Holmes with other men entered the bank through a dash at the side of the bank। Holmes with other men, Holmes दूसरे लोगों के साथ बैंक में एंटर हुआ थ्रू अ स्मॉल डोर एट द साइड ऑफ द बैंक। एक छोटे से दरवाजे से, एक साइड डोर से वो एंटर हुए थे सबके साथ। Sherlock Holmes, Mr. Jones, Watson and the bank manager Mr. Merriweather, they all entered through the side door। फ्रंट डोर से, मेन एंट्रेंस से वो नहीं गए ताकि किसी की नजर में ना आए, बल्कि रात के टाइम चोरी छुपे वो भी एक साइड डोर से गए। Through the dark and narrow passage they entered a room। Through the डार्क एंड नैरो पैसेज, एक तंग और नैरो रास्ते से गुजरते हुए दे एंटर्ड अ लार्ज रूम फिल्ड विद लार्ज बॉक्सेस। वो एक बड़े रूम में एंटर हुए जहां बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए थे। द लार्ज बॉक्सेस इन द बेसमेंट ऑफ बैंक कंटेन्ड
जी, उन लार्ज बॉक्सेस में जो बैंक की बेसमेंट में थे उनमें क्या रखा था? गोल्ड. दे कंटेन गोल्ड. द बैंक रिसीव्ड द गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस 3 months ago. बैंक को ये गोल्ड कितना अरसा पहले मिला था? 3 months ago. और 3 months ago ही स्पॉल्डिंग ने जॉब शुरू की थी मिस्टर विल्सन के घर पे. द बैंक रिसीव्ड द गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस. गोल्ड कहां से आया था बैंक में? फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस. John Clay's friend who sat in the office to offer job to Wilson was जी, जॉन क्ले का कौन सा दोस्त था जो ऑफिस में बैठा था और उसने विल्सन को जॉब ऑफर की थी? जी, उस वक्त उसने अपना नाम डंकन रोज बताया था, लेकिन इनफैक्ट वो जॉन क्ले का दोस्त था और उसका क्या नाम था? आर्ची. यस, इट वाज आर्ची. In number 19, in fact, Spalding used to spend half day in the basement for dash instead of photography. Photography के बजाय वो आधा दिन किस में गुजारता था? जो बेसमेंट में वो अपना आधा दिन स्पेंड करता था फोटोग्राफी के नाम पे. बट इन रियलिटी वो फोटोग्राफी नहीं करता था, बल्कि क्या काम करता था वो उस डार्क रूम में? डिगिंग होल. ही वॉज बिजी इन डिगिंग होल. वो होल कहाँ? वो होल डगअप करता था उसके घर से बैंक के बेसमेंट तक. विल्सन वॉज ऑफर्ड द अट्रैक्टिव जॉब. विल्सन को अट्रैक्टिव जॉब ऑफर की गई थी टू कीप हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर सम आवर्स डेली. विल्सन को ये जॉब क्यों ऑफर की गई थी? उसको ये जॉब इसलिए ऑफर की गई थी सो दैट ही दे माइट कीप हिम अवे फ्रॉम द हाउस. चंद घंटे वो घर से दूर रहे और उस दौरान वो आजादाना अपना काम कर सके, डिगिंग वाला काम, कि वो होल या टनल बना सके इजीली बगैर किसी खौफ के कि उनको पता हो विल्सन घर पे नहीं है और वो अपना काम फ्रीली कर सकें. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा ये दरमियान में जो मूवी अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं बंद कर रखें, अदरवाइज आई विल रिमूव देम फ्रॉम द क्लास. जी, समरी हमने कल पढ़ ली थी बेटा. You might have learned the summary. Now come to the question answers. Question answers of this unit, page 106. Answers of these questions are also provided to you in your homework. लेकिन एक बार मैं आपको पढ़ा देती हूँ. Who was जी बेटा अहमद नवाज. Ahmed Nawaz, beta, unmute yourself. जी, you want to ask something? Ahmed Nawaz, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. अहमद, ईशा साजिद, बेटा कोई प्रॉब्लम है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम टीचर. जी वालेकुम अस्सलाम बेटा. टीचर मैंने आपसे कहना था कि मुझे आप फर्स्ट 4 MCQ शो करवा दें. कौन से 4 MCQ? फर्स्ट वाले टीचर ये यस टीचर. फर्स्ट वाले में बेटा फर्स्ट वाले में है कोट. ये चले मैं बाद में एंड में करवाती हूँ. अभी मैं आगे पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा दूं, ठीक है? ओके टीचर. बाद में करवा दूंगी बेटा एंड में. Who was now come to the answer questions. Answer these questions. First question is who was Mr. James Wilson? What was his business? जी, Mr. James Wilson का बिजनेस क्या था और वो कौन थे? जी, Mr. James Wilson was a small, fat, young man.
Mr. James Wilson was a small, fat young man with This meeting join the new meeting. Yes. bright red hair. He had a small shop in Coburg Square. He used to buy and sell old clocks. You all are provided these questions along with answers in your homework. Who can become the member of Red-Headed Men's Club? All red-headed men, strong and healthy, above the age of 21. All red-headed men, strong and healthy, above the age of 21, and Londoners can become the member of Red-Headed Men's Club. What kind of person was Vincent Spalding? जी, Vincent Spalding किस किस्म का इंसान था? Vincent Spalding was a hard-working young man who used to work for Mr. Wilson on half pay just to learn about his business. He was fond of photography and prints the photos himself. He was fond of photography. यही बताया था ना उसके बारे में. He was fond of photography and he used to take out the prints himself. He prints the photos himself. और उसके लिए उसको वो डार्क रूम रिक्वायर्ड था जो उसके घर की बेसमेंट में वो चला जाता था. जी, why was Mr. Wilson worried when he came to Mr. Holmes? मिस्टर विल्सन क्यों परेशान थे जब वो होम्स के पास आए? मिस्टर विल्सन was worried because the office was closed suddenly and uninformed. वो परेशान थे क्योंकि वो ऑफिस अचानक बंद हो गया था और बगैर किसी इंफॉर्मेशन के. He was feeling something strange and serious in that matter. और उसे महसूस हो रहा था कि इसमें कोई चीज सीरियस थी और स्ट्रेंज थी, कि इस मामले में कोई सीक्रेट था और कोई पुरस्कार चीज थी, कोई हिडन सीक्रेट था इसमें. मतलब उसे कुछ चीज इसमें अलार्मिंग नजर आ रही थी. What was the importance of Wilson's home? अब शर्लक होम्स ने क्या ऑब्जर्व किया? विल्सन के घर की क्या इंपॉर्टेंस थी? Wilson's home was located right at the back of City and Suburban Bank, one of the biggest banks in London. विल्सन के घर की क्या इंपॉर्टेंस थी? उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट थी because it was located right at the back of City and Suburban Bank, one of the biggest banks in London. G. Who dug up the hole to the bank's basement and why? वो होल किसने डग अप किया था और क्यों? Vincent Spalding, who was in fact John Clay, a dangerous criminal. Vincent Spalding, who was in fact John Clay, जो दरअसल Vincent Spalding उसका नाम नहीं था, बल्कि इनफैक्ट क्या नाम था उसका? John Clay. He was in fact John Clay, a dangerous criminal of London. He dug up the hole to the bank's basement. He wanted to steal the boxes of French gold from the bank through this hole. और किस मकसद के लिए उसने ये होल डगअप किया था? बिकॉज वो चुराना चाहता था बैंक से फ्रेंच गोल्ड इस होल के रास्ते. थ्रू दिस होल, इस होल के रास्ते. Why was the club closed suddenly uninformed? क्लब अचानक क्यों बंद हो गया था? The club was closed suddenly. अचानक क्लब बंद हो गया था because the work of digging the hole had completed. क्योंकि क्लब को बंद कर दिया गया था because उस होल की खुदाई का काम, उस टनल की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया था. The hole was completed and there was no need to
keep Wilson away from his house now. और अब उन्हें मजीद जरूरत नहीं थी कि वो विल्सन को उसके घर से मजीद दूर रखें, बिकॉज उनका काम हो चुका था, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, और इसलिए उन्होंने विल्सन को मजीद नहीं घर से दूर किया. Why did Holmes have a look at the servant Spalding? होम्स ने स्पॉल्डिंग को क्यों देखा, मतलब वो उसके घर गया. अब सब डिस्कशन करने के बाद उसने, जब होम्स ने विल्सन से कहा था कि यू विल गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व बाय मंडे तक का टाइम लिया उसने, और फिर वो उन चीजों पे के बारे में 10-15 मिनट बैठ के सोचता रहा, और उसके बाद उसने क्या किया. Along with Watson, he went to his house. He went to see the house of Wilson, and when he went there, he noticed the location of the house. He noticed the importance of his house, and also he noticed about the ground कि उसने कोई होल तो नहीं डेवलप किया, और इसके साथ साथ उसने उसके घर पे नॉक किया, और विंसेंट स्पॉल्डिंग जब आया तो उससे उसने एड्रेस पूछा. लेकिन वो एड्रेस क्यों पूछा था, उसके बारे में तो, जगह के बारे में तो वो खुद ऑलरेडी जानता था, लेकिन उसने उससे पूछा इसलिए था बिकॉज ही वांटेड टू हैव अ लुक एट हिज ट्राउजर्स, एट हिज नीज, द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स, के वो फटे तो नहीं हुए थे, और उससे वो कंफर्म करना चाहता था कि क्या वाकई ये वहां पे कोई खुदाई का काम कर रहे हैं. होम्स हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड दैट स्पॉल्डिंग वाज जॉन क्ले, अ क्रिमिनल, एंड होम्स हैड अ लुक एट हिज नीज. होम्स ने उसे मिलने का कहा ही इसलिए था, उसे मिलने इसीलिए गया था कि वो उसके नीज को देखना चाहता था कि क्या उसके नीज of his trousers कैसे हैं. The knees of his trousers were thin and had a hole in it. It was clear to Holmes that he had been digging the hole for hours on his knees. और उससे उसको कंफर्म हो गया था कि वो घंटों घुटनों के बल बैठ के अपना डिगिंग का काम करता रहता है. ठीक है बेटा. अच्छा, अब बाकी मैं आपको बाद में करवा दूंगी इन माय नेक्स्ट पीरियड. अभी हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चनिंग कर लेते हैं.